Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 9. I'm your computer teacher Anika Muzabir, and today we are going to learn some classifications and a bit more detail about operating system, what it is and how it actually works. So let's start with chapter number 2. Here we must discuss what we are going to learn in this chapter. I hope आप लोगों ने पहले भी इसका idea होगा, but let's have a recap that what basically is the content of this chapter, what we are going to learn about operating system. It's obviously its objective, its function, like what kind of function an operating system performs, how many common types an operating system has, and how many categories it is being classified, and how many other types on the basis of its working. And we will also learn a graphical user interface. We will learn some different icons that are being used in graphical user interface and their working as well. Then we will know how to manage data. Managing is not any easy when it comes about data. Computer helps us manage data in the form of files and folders, and we have an option to arrange data in multiple sort with multiple sort options, like in ascending order, descending order, or with the data it is not being modified. Then at last, we will learn how to install a system software, that is basically your operating system software. You will have a video tutorial of how operating system will be installed on your system. The whole process, it will be a guide from step 1 to the last step. We will also learn how to install an antivirus. I hope आप लोगों को antivirus का idea होगा. If you have studied this topic before, antivirus is basically a virus that removes the viruses or threats from your system. वायरसेस क्या होते हैं जो हमारे सिस्टम का डेटा स्टील करते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर देते हैं, एंड दे मैनिपुलेट सो मेनी अदर थिंग्स. एंड वी विल आल्सो लर्न द installation of a window defender. It also defends your system from outer threats. So let's begin with the content of chapter number 2. First of all, we will have a little bit introduction about operating system, which is also known as OS or system software. It is basically a collection of system software that controls the working of a computer, like how computer works, how it manages its resources. कंप्यूटर के ऊपर हमने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से रन होगा, दैट वुड बी ऑब्वियसली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो to make computer workable, we use operating system. A computer cannot work without operating system. आपको ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप उसके ऊपर मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स इंस्टॉल करके आप उसके ऊपर काम कर सकें. So we can say it is a collection of system software that makes your computer system work. Moreover, it acts as an interface between user and computer. इंटरफेस के तौर पर कैसे एक्ट करता है हमें पता है. We have studied, we are being studying this from so long, that computer only understands binary language. It cannot understand any human language, or we call them high level languages. Computer only understand low level language. And that is also on the other side. If we see, human cannot understand low level language. जो computer को language समझ आती है, that we cannot understand. राइट. सो देयर मस्ट बी एन इंटरफेस जो हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं उसको वो ट्रांसलेट करके उसको वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो उसको सेट करे, और सिस्टम का जो भी सिस्टम जिस लैंग्वेज में काम कर रहा है उसको हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो हमारे सामने प्रेजेंट करे. सो गेटिंग यूजर्स कमांड और वो सिस्टम को बताना और सिस्टम का काम लेके वो यूजर्स तक पहुंचाना, दिस इज द वर्क दैट इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस. दोनों के बीच में एज ए इंटरफेस इस तरीके से ये काम करता है. It also facilitates program execution and developing application program. Like you can install application softwares on operating system, and you can create some other application programs using an operating system. Like इसको आप as a base use करके इसके ऊपर आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको यूज करते हुए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए नया सॉफ्टवेयर भी आप बिल्ड कर सकते हैं.
प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। आपके पास कोई भी प्रोग्राम हम उसको ओपन करते हैं, उसके बीच में काम करते हैं, उसकी ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक उसके बीच में जो जो इंस्ट्रक्शंस आप परफॉर्म करते जाते हैं उसको भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। Here on the right side you can see a picture. These are some basic operating system that are being used in today's life. Windows है आपके पास, Linux है, Mac OS है, Red Hat, Sun, Cobalt, Solaris and FreeBSDs. These are all basic operating system. लेकिन इनमें से जो most commonly used operating system है that is Windows, जो कि 98% आपके पास यूज होता है। 98% लोग in the whole world use this operating system. Mac OS is also being used, but most commonly used operating system is Windows. We have some different variants of Windows coming up with the passage of time. हर थोड़ी देर से बाद Windows का नया वर्जन आ जाता है with a modified option with updated features. Okay, what are the objectives of operating system? Like the main task it focuses on. ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि इट मेक्स आवर सिस्टम easy to use, convenient to use and so that we can use the system efficiently. ठीक है, कंप्यूटर हमारे पास बिल्ड ही इसीलिए हुआ है कि हम उसको यूज करते हुए अपना काम मोर एफिशिएंटली करें, मोर तेजी से अपना काम करें। तो अगर हमारे पास सिस्टम है और हमें उसको यूज करने में मुश्किल आ रही है या हम उसको यूज करते हुए अपना काम तेजी से नहीं कर रहे, so that system is of no use. So operating system makes the computer convenience and efficient for you to use, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना काम आसानी से और तेजी से कर सकते हैं। It also manages computer resources. अब कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं हमारे पास? Any device that is attached with your computer system is called computer resource. मेनली हमारे पास कौन सी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं? माउस अटैच होता है एज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर आपके पास कीबोर्ड अटैच होता है, फिर आपके पास सीपीयू अटैच होता है, आपके पास सिस्टम के साथ मजीद जो है वो स्पीकर्स अटैच होते हैं, प्रिंटर अटैच होता है, हम उसके साथ स्कैनर अटैच करते हैं। लाइक वी कीप एडिंग डिवाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ आवर नीड्स. So any device that is attached with your system, that is attached with your computer, is called computer resources. And who manages those devices? वो input devices हैं, output devices हैं, memory devices हैं, just like USB flash drives या external hard disk है, या आपके पास DVDs हैं जिसके अंदर कोई data store है। तो ये तमाम devices को manage करना और वो efficiently यूज हो सके वो भी हमारे पास कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दिस इज हाउ इट इज आल्सो कॉल्ड अ रिसोर्स मैनेजर. इसके अलावा आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में बहुत कुछ पढ़ा होगा. यू हैव अ लॉट ऑफ डिटेल इन दिस टॉपिक कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके पास बहुत सारा कंटेंट है सिर्फ उसको डिफाइन करने के लिए, और उसके फंक्शंस जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, यूजर मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यूज़र मैनेजमेंट में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ यूज़र्स के अकाउंट का डेटा, उनकी पासवर्ड या उनकी लॉगिन डिटेल्स को जो है वो सेव करता है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर वो मेमोरी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट में वो डेटा को किस तरीके से कहाँ कैसे फाइल्स या फोल्डर्स के फॉर्म में स्टोर करना है और उनको फिर ज़रूरत पड़ने पर वहीं से मेमोरी में से उसको उठा के लोड करना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डिफाइन करती हैं। तो वी कैन ऐड एज मच कंटेंट एज वी नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन एवर वी हैव टू डिफाइन इट, राइट? So the next topic is operating system classification. Here we will study how many types it is being classified. ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने वर्किंग पढ़ ली, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, हमने उसके फंक्शंस पढ़ लिए, हमने उसकी इवन टाइप्स भी पढ़ ली, जिसके अंदर कमांड लाइन इंटरफेस आता है या यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आते हैं. वी हैव स्टडीड हाउ दे बोथ वर्क. So this is the time that we must know there are some categories of operating system which are being categorized on the basis of the number of user it supports or the component it shares, ठीक है। तो वो हमने आज वाले लेक्चर में आगे देखना है.
So there are basically two categories of operating system. दो types में इसको classify किया गया है. One is single user operating system and the other one is multi-user operating system. I hope and I am damn sure about that कि आप लोगों ने ये topic previous class में definitely पढ़ा होगा. So let's discuss this topic in a bit more detail. So what we were discussing, that operating system is classified into two types: single user operating system and multi-user operating system. The name depicts its real meaning. Single user operating system है तो हमें इससे ये समझ आ जाएगा कि इसको सिंगल यूजर ही ऑब्वियस इस्तेमाल करें. अभी हमें इसके बारे में लेट्स सपोज नहीं डिटेल पता, लेकिन उसका नाम ही हमें डिटेल बता रहा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दैट मीन्स it must be used by a single user at a time. And multi, multi means more than one at a time. The operating system that can be used by more than one person at a time could be multi-user operating system, right? So let's see its detail. First of all, it is single user operating system. Any operating system, as the name tells you, that is used by a single user at a time is known as single user ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको एक टाइम पे एक बंदा इस्तेमाल कर रहा हो. आपके पास इसकी बहुत आसान एग्जांपल है. आपके घर में अगर कंप्यूटर है, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है, या आप कहीं पे किसी बंदे को काम करते कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हैं, तो मोस्टली हमारे पास जो रियल सिनेरियो है, ये जनरल सिनेरियो, इसमें ये होगा कि एक बंदा ही एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है. एक सिस्टम के ऊपर दो बंदे बैठ के अलग अलग अपना काम नहीं कर सकते, वो सिंगल सिस्टम को ही ऑपरेट कर रहे हैं. So that operating system is basically your categorized as single user operating system. It facilitates only one person to log in and use computer at a time. मतलब कि ये नहीं है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा लोग लॉग इन नहीं कर सकते. देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी वेयर मल्टीपल पीपल कैन लॉग इन, मल्टीपल पीपल कैन हैव देयर अकाउंट ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, बट only one of them can log into that computer system at a time. और हमारे पास जब वो अपना काम कर सकता है, तो जब वो अपनी लॉगिन डिटेल वो लॉग आउट हो जाता है, तो दूसरा यूजर आके उसी सिस्टम के ऊपर अपने अकाउंट से लॉग इन करके उसको ऊपर काम कर सकता है. सो इट इज easy to use, it is not any complicated. ठीक है, एक बंदा इस्तेमाल कर, एक बंदा हैंडल कर रहा है, so it is bit easier to use as compared to the other classification of operating system. Okay, the next point is resources of computer. What are the resources? I have told you earlier, the devices that are attached to a computer are called resources. So the resources of computer such as CPU, that is your central processing unit, memory, and input output devices are not shared with any computer. We haven't seen a person with a single computer sharing his keyboard or mouse with another computer at the same time. हमने कभी नहीं देखा होगा कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर जो एक बंदा काम कर रहा है, वो एक ही माउस से दो सिस्टम्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, या एक ही कीबोर्ड जो है वो दो या तीन सिस्टम मल्टीपल एक ही टाइम पे यूज कर रहे हैं. तो हमारे पास एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिसोर्सेज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, वो शेयरेबल नहीं होते. वो एट द सेम टाइम पे वही सिस्टम यूज कर सकता है, वो शेयर नहीं होते. कंप्यूटर के रिसोर्सेज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयरेबल नहीं होते. रिसोर्सेज क्या होती हैं? वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, जिसके अंदर आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, मेमोरी डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सो मेनी अदर्स. ठीक है. Okay, where do we actually use single user operating system? It is used on microcomputer. What are microcomputer? You must have studied it, microcomputers in the classification of digital computer in chapter number 1, I guess. So microcomputers are the computer that we normally use, जो कि आपके पास small size computers होते हैं, जिसके अंदर desktop computer या जो laptops आते हैं, तो इनके ऊपर जो operating system use होता है, that is your single user operating system. And user can open more than one program at the same time. It doesn't forbids you to open one program at the same time. आपको कभी भी ये नहीं रोकेगा कि आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो इसके अंदर ओपन नहीं कर सकते. Let me show you an example कि जैसे मैंने यहाँ पे अगर ये ओपन किया हुआ है,
तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मैंने साथ जो है ये दिस इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। कहाँ थे हम, स्लाइड नंबर 9 के ऊपर। तो ये यहाँ पे मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है, यहाँ पे मैंने साथ ये जूम वाला सॉफ्टवेयर लेट सपोज ओपन किया हुआ है मैंने, फिर यहाँ पर इंटरनेट भी ओपन किया हुआ है। इसी तरीके से मैंने साथ में ये एडोब की फाइल भी ओपन की हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो शेयर होती हुई नज़र आ रही होंगी। आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव शेयर दी प्रॉपर स्क्रीन, लेकिन हमारे पास जो है बहुत सारी यहाँ पे नीचे ये इसके अंदर इस बार में आप देख सकें कि मैंने सेम टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं। सो इट अलाउज यू टू ओपन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट दी सेम टाइम। एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन कर सकते हैं। यू कैन स्विच अमंग देम, कि आप एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है तो वहीं से दूसरा प्रोग्राम भी आप ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस, आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी इसके लिए रिक्वायर नहीं होती या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको सिस्टम परचेज नहीं करना पड़ता। यू कैन इजीली अफोर्ड द सिस्टम। लैपटॉप अगर आप परचेज कर रहे हैं तो दैट मस्ट बिट एक्सपेंसिव, तो अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर सिंपली परचेज कर रहे हैं तो दैट इज़ अ लॉट मोर चीपर, दैट एवरी इंडिविजुअल कैन अफोर्ड देम फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो हमारे पास इन्हीं कंप्यूटर के ऊपर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। सो दे डू नॉट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, कि बहुत ज़्यादा मेमोरी हो, ठीक है, एंड सो दे डोंट कॉस्ट मच। एग्जाम्पल्स क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की? डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, that can where an entire operating system is saved on a disk। फिर विंडोज़ की हमने बात की थी कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ की डिफरेंट वर्जन्स हैं जो हमारे पास टाइम टू टाइम आते रहे हैं। लेटेस्ट इज विंडोज़ 10.1 आई गेस। सो विंडोज़ 95 XP and 7 are basically versions of Windows operating system. So these are examples of operating system. Remember what is single user operating system? That is used by a single user at a time. It does not allow you to share its resources. It can allow you to open multiple programs at the same time. It is used on microcomputer. It requires less memory and costs. And examples are disk operating system, Windows 95 XP and 7C. It's not any difficult. So let's move to the next topic, which is multi-user operating system. So what is a multi-user operating system? As the name tells, I have told you what is multi, that means more than one at a time. So it supports many users to use a computer at the same time. एक से ज़्यादा लोग एक ही टाइम पे एक ही कंप्यूटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यूज़ हो रहा है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से कंप्यूटर्स हैं जिनको एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है डिजिटल कंप्यूटर की, उसके अंदर आपने मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स को पढ़ा होगा या सुपर कंप्यूटर्स को पढ़ा होगा कि जो हंड्रेड्स या इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर को सपोर्ट करते हैं, कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर हमारे पास 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो उन कंप्यूटर्स के ऊपर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, दैट इज योर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम सिस्टम। It allows many users to log into a single big computer। क्या होता है, आपको LCDs जैसे वो मॉनिटर्स होते हैं वो हर यूजर को अलग दे दिए जाते हैं। जो CPU होता है वो एक ही होता है आसान अल्फाज में, ठीक है। जो ऐसे कंप्यूटर होते हैं बहुत बड़ा एक पूरे रूम के साइज जितना CPU होता है, उसके साथ जो स्क्रीन शेयर कर दी जाती है जिनको टर्मिनल्स कहा जाता है। जैसे जो हम मॉनिटर होता है तो वो मॉनिटर सिर्फ मॉनिटर कीबोर्ड और माउस जो है वो उसके साथ अटैच होते हैं। तो वही सिंगल जो CPU होता है वो सारे यूजर्स के साथ शेयर हो रहा होता है। सो दिस इज हाउ कंप्यूटर्स आर बीइंग शेयर्ड, यानी कि एक ही स्क्रीन के आगे सारे लोग बैठ के उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास बहुत सारे लोगों को ये अलाउ करता है कि वो सिंगल बिग कंप्यूटर के ऊपर जो है वो लॉग इन करके उसके ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम सेम टाइम के ऊपर रन कर सकें। एंड इट अलाउज रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर टू बी शेयर विद अदर यूजर्स ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। तो हमारे पास मल्टी यूजर के अंदर जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, जो डिवाइसेस जो हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, दैट कैन बी शेयर्ड विद अदर यूजर्स ऑन द नेटवर्क।
कौन से कंप्यूटर्स में यूज होता है? मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, विच itself are the biggest computer that can support 100 or even thousands of users at the same time. तो उन systems, उन computers के ऊपर हमारे पास multi user operating system use होता है. Moreover, people using multi-user operating system can communicate with each other and they can share files, important data and documents. ठीक है, नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क में जिसमें सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, तो जब वो एक ही कंप्यूटर को यूज करें, so it becomes slightly more even possible and more easier कि लोग इस एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को फाइल्स शेयर कर सकें. So there comes a person that controls the मेन थिंग इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. हर यूजर, अब ये तो नहीं होगा कि कोई भी बंदा किसी भी सिस्टम के ऊपर आके बैठ जाए. हर यूजर को उसके नाम के साथ उसकी लॉगिन डिटेल्स दी जाती हैं, जिसमें उसको यूजर नेम और पासवर्ड आता है. तो ये यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से वो अपने अपने सिस्टम के ऊपर, उसी कंप्यूटर के ऊपर, जो मेन कंप्यूटर है उसके ऊपर, अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर जाके लॉगिन करके वो सिस्टम को यूज करते हैं. तो ये चीज जो मैनेज करता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, दैट पर्सन इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास जो है वो मेन वर्किंग को कंट्रोल करता है. वो कैसे कंट्रोल करता है? जो यूजर्स हैं जिन्होंने बस एक ही कंप्यूटर को यूज करना है, उनको यूजर नेम और लॉगिन डिटेल्स दे देता है, उनके पासवर्ड्स होते हैं, और उस सारी चीज को एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनेज करता है. जो ये देखता है कि कोई इलॉजिकल या अनऑथेंटिकल एक्सेस तो नहीं हो रही है. सो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे लोग एक ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं. सो इट डेफिनेटली रिक्वायर्स मोर पावरफुल सीपीयू, लार्ज मेमोरी एंड लार्ज हार्ड ड्राइव्स, के जहाँ पे एक बंदा अगर एक कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है तो उसका थोड़ा सा डाटा होगा. जहाँ पे 1000 लोग एक ही कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो उन सब लोगों का अपना अपना काम का डेटा होगा, और दैट रिक्वायर्स अ लार्ज मेमोरी टू बी सेव्ड. सो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स अ मोर पावरफुल सीपीयू दैट कैन बी शेयर्ड. जो दूसरे हमने बात की ना, रिसोर्सेज शेयर होते हैं, तो वो सीपीयू बाकी यूजर्स के साथ शेयर होता है. It requires large memory and large hard drive so that it can store large amount of data. It supports multi-programming and टाइम शेयरिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग होता है कि ऑपरेटिंग यूज ओपनिंग वन प्रोग्राम एट मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं. एंड टाइम शेयरिंग, जो सीपीयू होता है उसका टाइम शेयर होता है यूजर के साथ, ताकि हर यूजर अपने शेयर टाइम के अंदर काम कर सके. एग्जाम्पल्स क्या है? विंडोज एनटी, यूनिक्स एंड लिनक्स और पॉपुलर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. हमने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी, जिसकी हमारे पास एग्जाम्पल्स थी विंडोज. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, दीज आर विंडोज, एनटी, यूनिक्स एंड लिनक्स. दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. So that's all for today. You have assignment to perform. You have to differentiate between single user and multi-user operating system. You know, you must know that when it comes about a question that says differentiate, you must डिफ्रेंशिएट विद द सेम पॉइंट्स. जैसे हम दोनों हेडिंग्स को, दोनों टॉपिक्स को सामने रखते हुए दोनों की सिमिलैरिटीज जहाँ पे सेम वर्किंग लेवल है, वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है. जैसे हम सिंगल यूजर की बात करते हैं तो वो सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है, तो ये मल्टी यूजर इससे कैसे डिफरेंट होगा कि मल्टी यूजर एक से ज्यादा लोगों को एक सेम टाइम पे सपोर्ट करता है. फिर सिंगल यूजर का दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि रिसोर्सेज इसमें शेयर नहीं हो सकते. तो मल्टी यूजर उससे कैसे डिफर होगा कि उसके अंदर रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली राइट अ क्वेश्चन दैट सेज डिफरेंशिएट. पॉइंट्स की फॉर्म में आपने लिखना है, कंपैरिजन की फॉर्म में लिखना है. दिस इज योर होम टास्क एंड यू नो द रूल्स. यू हैव टू सबमिट इट विद इन 24 hours so that you can be marked present, otherwise you will be marked absent. So let's revise what we have studied in today's lecture. We have discussed some basic points, that basic topics that we will cover in chapter number 2, and then we have studied what operating system it controls the working of any computer, which is also known as system software. We have studied its objective, like what it actually does. It makes our computer more easy and convenient to use. And then we have studied its classification. It is classified into two types, single user and multi-user operating system, and we have seen them in detail. We have studied their working, what single user actually works, and what are the examples of single user operating system, and how it is beneficial, like is it costly or cheaper for us. Then we have studied about multi-user operating system. We have studied its
main working, like how it is being shared with multiple users. We have studied on which computers it is basically used, and we have also studied about the administrator that controls the whole working of this operating system by assigning login details to the users of this operating system. That can be more than one, that can be hundred or even thousands, depending on the type of computer they are being using. And we have also discussed like what kind of resources can be shared and how it is expensive, how it gets expensive. And we have also studied what are the types of multi-user operating system. I hope that these points will help you in attempting your assignment, which is differentiate between single user and multi-user operating system. So kids, that's all for today. We will learn a new topic in the next lecture. Do practice the assignment, and also you need to learn these differentiate points, right? That's all for today. Have a good day ahead. Stay blessed, and Allah Hafiz.